really auspicious. You don't have to touch it, it will burn. Give your hand with me. Welcome to the inaugural session of the Ladakh Screenwriters Fair 2022. Mr. R.K. Mathur, Honorable Lieutenant Governor, Union Territory of Ladakh, who's joined us, who's attending the inaugural session online. He's not with us, but I'd also like to, well, he might be joining us. Welcome Mr. Skandin Chospel, Honorable Executive Councillor, Ladakh Autonomous Independent Council, LEG. He handles the Information Department in the Council. I'd also like to welcome Mrs. Padma Amo, Commissioner Secretary Information, who's been the guiding force. She handles the Information Department, apart from a number of other departments of the UT Administration of Ladakh. A special welcome to Madam Anupama Chopra, founder of the digital platform Film Campaigning. Thank you for gracing the occasion, ma'am. You've been an inspiration for a lot of people. We've seen you on TV and elsewhere every time. I'd like to welcome Mr. Shapan Batra, filmmaker, Mr. Satyanshu Singh, the screenwriter. I'd also like to welcome Mr. Kunsuk Ladakhi, the renowned actor and filmmaker who's sitting with us here. Festival, and she and Dr. Namgyal, and we just kept at it, and we are all here. You know, my life is all about the movies. I love the movies. One of my favorite film critics, Roger Ebert, said that of all the arts, films are the greatest aid to empathy, and good ones make us into better people. तो अच्छी फिल्में हमें बेहतर इंसान बनाती हैं, and I really believe that. तो I'm very happy कि हम छोटी step है, but in some small way we can help to further the cause of film. यहाँ इतने filmmakers हैं, if we can help you to hone your voice, to make your craft better, and someday I'll be reviewing your films, hopefully. That will be my dream. And just thank you for the opportunity, and please talk back to us. Tell us कि हमको ये चाहिए, आप ये करो, and we will do our best to make this as productive for you as we can. Words which I would like to mention. First, that the Himalayan Film Festival, which was held, I found that our own film fraternity is extremely enthusiastic and extremely talented. All that they are looking for is some encouragement, some guidance, and I think this is where landscape, the story material which is available all around to offer to the filmmakers. Probably true of many parts or most parts of the country, but I would say especially so because Ladakh has somehow seen a very large number of films being made here, the documentaries being made here, the serials being made here. So I would say that our filmmakers are reasonably familiar compared to other parts of the country with what is happening in the film world at the very high levels. And therefore, I would say that our own fraternity is uniquely poised to take advantage of this workshop. अंगदू जी बहुत बड़े एक सीनियर यहाँ पे हैं लद्दाख में, जो मूवीज़ बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं और काफ़ी अपने हिट यहाँ पे मूवीज़ दें हैं सर। तो आज यहाँ पे वर्कशॉप हो रहा है और बड़े एक्सपर्ट्स यहाँ पे आए हैं, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं और ये क्यों होना चाहिए था, कितना ज़रूरी था? क्योंकि यहाँ पे जो फिल्म मेकर्स है अभी यूथ में भी बहुत सारे इंटरेस्ट हम देखते हैं, बच्चों में भी है, तो कितना ज़रूरी था ये वर्कशॉप होना सर? ये वर्कशॉप जो अभी होने जा रहा है ये लद्दाख की ये राइटर्स के लिए, ये स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि लद्दाख में आज तक जितने भी हम लद्दाखियों ने फिल्में बनाई, अगर हम उस पर थोड़ा सा लुक बैक करें, हम उस पर थोड़ा सा मोड़ के देखें, तो कहीं ना कहीं हमें ये लगता था कि हम हमेशा से ये राइटिंग में, स्क्रिप्ट में हम बहुत लैक कर रहे थे, स्क्रिप्ट में हमारे बहुत कमज़ोर होता था। तो हमारी जो सारी जो स्टोरीज़ है वो फ्लैट जाता था एक किस्म से, कि इतना हमारा कभी कभार तो इतना कमज़ोर होते थे कि आने वाले
सीन्स के बारे में पहले से ही पता चल जाता था कि ये करेक्टर क्या करने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। तो इस समय ये वर्कशॉप होना जो हमारे लद्दाख की फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसमें जो स्क्रिप्ट राइटिंग में जो टेक्निकलिटीज़ होते हैं इसके बारे में हम एक अच्छी जानकारी ले सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आइंदा लद्दाख में जितने भी लद्दाखी लोग फिल्म बनाएंगे बहुत बढ़िया बनाएंगे। जी जी। तो आपको जैसे जिस तरह से अभी फेस्टिवल्स भी बहुत हो रहे हैं, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं, वहाँ पे दिखाया जाता है, और बार बार जो है ये इवेंट्स या फेस्टिवल्स करना कितना ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले यहाँ पे जो कैपेबिलिटीज़ हैं लोगों में। जैसे आप बहुत सीनियर है सर, तो लोगों को पता लगना, और लोग जब इंटरेस्ट लेते हैं कहीं ना कहीं लोग समझते हैं इसमें कोई स्कोप नहीं है, तो ये चीज़ें बार बार होना कितना ज़रूरी है सर? जब से लद्दाख में यूटी बने हैं तो, और मैडम पद्मा मोले ने जो इस क्षेत्र को संभाला है, तब से लद्दाख के अंदर जो एक फिल्म मेकिंग में एक बूस्ट हमें देखने को मिला है। और इन्होंने लद्दाखियों को, फिल्म मेकर्स को एक प्लेटफॉर्म देने की अच्छी कोशिश की। पिछले साल आपको पता है कि यहाँ पे लद्दाख हिमालयन फिल्म फेस्टिवल हुआ था, जिसमें हम सारे लद्दाखी फिल्म मेकर्स को पार्टिसिपेट करने का एक अच्छा मौका दिया, हमारे टैलेंट को शोकेस करने के लिए एक अच्छा मौका मिला। तो मुझे ये, और इसके बाद जो मैडम ने एक और फील्ड्स में, जैसा कि आज यहाँ पे एक वर्कशॉप हो रहा है स्क्रीन राइटिंग में, इस तरह की कोशिशें बार बार किया, क्योंकि इस वजह से लद्दाख की जो फिल्म इंडस्ट्री है लगभग वो बहुत ही मुश्किल हालात में थे। एक तो हमारे पास थिएटर नहीं है, एडिटोरियम नहीं, इस वजह से जो हम बनाते हैं उसको दिखाने का भी एक ज़रिया नहीं था। तो ऐसे समय में इस तरह की जो प्रोग्राम्स होना इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, वो लद्दाख की फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाने में बहुत मदद करेगा। जी जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर चैनल के साथ जुड़ने के लिए। तो सर आप अपने इंट्रोडक्शन में कह रहे थे आप स्क्रिप्ट करते हैं, स्क्रीन राइटिंग करते हैं, कुछ अच्छा नहीं करते हैं। तो हम आपको बचपन से सुनते आए हैं, आप काफ़ी लोगों में आपका एक रुतबा है कि आप जिस तरह से आप अनाउंसमेंट करते हैं या जिस तरह की स्टोरीज़ आप बनाते हैं, तो आपको इस वर्कशॉप से कितना एक्सपेक्टेशंस है? मेरे कहने का मतलब ये था कि लिखा मैंने बहुत कुछ 300 से ऊपर एपिसोड, टेलीफिल्म, फीचर फिल्म भी मैंने लिखा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बिना मंजिल के मैं चल रहा हूँ। तो कोशिश मेरा ये है कि मेरा ये प्रयत्न होगा कि इस वर्कशॉप से अब मैं चलूँ एक मंजिल को हाथ में लेके, और ये कोशिश करूँगा कि मैं सक्सेस रहूँगा। जी शुक्रिया। जोस्पा क्रिएशन एक ऐसा क्रिएशन हम बचपन से सुनते आए हैं, लोगों में काफ़ी फेमस है, आपके बड़े गाने देखते आए हैं, प्रोडक्शन जिसमें आप मूवीज़ भी बनाते हैं। तो इस तरह के जब वर्कशॉप्स होते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या उम्मीदें हैं सर आपकी? सबसे पहले तो मैं एलजी साहब और मैडम पद्मा का बहुत ही शुक्रिया करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे यंग इस ट्रेनिंग में बहुत यंगस्टर लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिले हुए हैं। तो हमें भी इस ट्रेनिंग से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होंगे, क्योंकि अभी तक मैं 22 इयर्स हुआ इस फील्ड में, अभी तक ऐसा ट्रेनिंग हुआ नहीं है, ज़्यादा कि फिल्म मेकर्स को ये सब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिला। तो इससे मैं बहुत ही खुश हूँ, और हमें भी, मैं 22 इयर्स हो गया इस फील्ड में, फिर भी मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। तो आप भी बहुत कल्चर प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं, आप भी डॉक्यूमेंट्रीज़ या मूवीज़ में आपने भाग लिया है। जिस तरह से आप इंट्रोडक्शन में कह रहे थे मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ पर कैमरा संभालता हूँ कितना सच्चाई है इसमें, और आपको क्या उम्मीदें हैं इस वर्कशॉप से? इस वर्कशॉप में हमें एक तो स्क्रीन राइटिंग जो मेन ज़रूरी होता है उसमें थोड़ा हमें जानकारी मिले या कुछ फ़ायदे मिले। बाकी अभी तक हमने जितना भी किया था, जितना भी डॉक्यूमेंट्री किया था, कई शॉर्ट फिल्म में भी किया था, कई फीचर फिल्म में भी काम किया था, तो उसमें अपने पे भरोसा नहीं होता है, ठीक है ना। जो हम खींचते हैं तो उसमें भरोसे नहीं होते। भरोसे इसलिए नहीं होते क्योंकि इस तरीके का कुछ ट्रेनिंग नहीं मिला है। तो जो मैं करता हूँ वो अच्छा है कि नहीं, अपने आप में एक कन्फ्यूज रहते हैं। तो अभी कुछ बड़े से जो बॉम्बे से अभी आया हुआ है वो लोग मतलब इस तरीके करो, ये करो, अगर वो फिर हमें देखे, फिर जो
बाद में आएंगे तो हम बड़े खुशी से हाँ ये मैंने शॉट लिया है, ये परफेक्ट है, ये शॉट लिया है, ये परफेक्ट है, वही उम्मीद करता हूँ बस। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, काचू साहब जो यहाँ हैं बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके जो शॉर्ट मूवीज़ रहते हैं काफ़ी इम्पैक्ट और सभी जो है काफ़ी फॉलो करते हैं। पहले तो कहूँगी काचू साहब, आपकी जो शॉर्ट फिल्म्स रहते हैं काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं, जो कंटेंट होते हैं बहुत यूनिक होते हैं, लोग बहुत इससे रिलेट कर पाते हैं। तो इस तरह के जब आप बनाते हैं तो आप लोगों को में आने वाले जनरेशन तो काफ़ी आपसे इंस्पायर्ड है, हम भी उन्हीं में से है कि आपको फॉलो करते आए हैं। तो आपको इस वर्कशॉप से क्या उम्मीदें हैं और आप क्या कहेंगे कि जिस तरह के फिल्म मेकर्स हैं कारगिल ले दोनों में, उनको कितना आगे जाना चाहिए और इस तरह की ट्रेनिंग्स बार बार होना कितना ज़रूरी है? बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे पास जो अभी आपने आप तो हमारे यूट्यूब वगैरह को देखते हैं तो थैंक यू सो मच। छोटे छोटे आइडियाज़ जो आते हैं ना, वो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जी मतलब बनाए अपने संतुष्टि के लिए और या समाज के अच्छाई के लिए मैं बना लेता हूँ। अब मेरे को ये मतलब स्क्रीन राइटर्स फेयर से मेरे को ये हासिल करना है कि इन छोटे छोटे आइडियाज़ को थोड़ा सा बड़ा फिल्म कैसे बनाएं। तो मैं वहाँ तक अटक जाता हूँ कि मतलब अगर 2 मिनट का मेरे पास आइडिया है तो वो 2 मिनट पे ही अटक जाता है। अब 2 मिनट को मैं 40 मिनट 50 मिनट करने की मैं कोशिश करता हूँ। तो वो इस वर्कशॉप से मैं सीखने के लिए आया हूँ। बाकी मुझे ये बड़ा मतलब अफसोस हुआ कि हमारे कारगिल से बहुत पार्टिसिपेंट कम है। तो हालांकि लिखने वाले पढ़ने वाले बहुत है, अगर उनको यहाँ पे वर्कशॉप अगर ज्वाइन करता तो कुछ थोड़ा और सीख जाता, लेकिन अफसोस ये हुआ कि बहुत कम लोग आए हैं। जी काजू साहब, आपसे एक और सवाल करेंगे। जिस तरह के कंटेंट आप सोचते हैं, बनाते हैं, आप कह रहे हैं कि ज़्यादा आपको और करना है, तो काजू साहब आपके जो कंटेंट्स रहते हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेशन रहता है उसमें। कई बार हम बात करते हैं किसी इश्यूज़ पे बात करते हैं न्यूज़ के माध्यम से, शायद लोगों को उतना रिलेट नहीं कर पाते हैं। जिस तरह के आप लोग डॉक्यूमेंट करते हैं या आप लोग एक शॉर्ट स्टोरीज़ करते हैं, लोग बहुत उससे इम्पैक्ट होते हैं, उससे चेंजेस काफ़ी आती हैं। तो इस तरह की और चीज़ें आप क्या सोच रहे हैं आगे फ्यूचर में करने के लिए? फ्यूचर में ये है, देखो अभी तो माशाल्लाह से आप लोग मीडिया वाले बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं, लेकिन करगिल के मीडिया जो है वो करगिल के मीडिया वालों का काम हम कर रहे हैं। एक्चुअल में वो ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है वो नहीं देखते हैं, इसलिए हम कभी कभी मजबूर हो जाते हैं कि ग्राउंड लेवल के जो रियलिटी है वो लोगों तक पहुँचाए, इसलिए हम कोशिश करते हैं। बाकी हमारे दिमाग में बहुत हम लोगों के, हमारा एक थिएटर ग्रुप है, तो हम लोग इम्प्रोवाइज़ करके कोशिश करते हैं कि समाज के मतलब जो अच्छी चीज़ें उसको अच्छा बनाएं, जो बुरे हैं उसको दबाएं हम, इसलिए हम कोशिश हमेशा करते रहते हैं। जी तो ज़रूर इनको फॉलो करिए, क्योंकि इनका जो शॉर्ट फिल्म्स रहते हैं या डॉक्यूमेंट्रीज़ रहते हैं काफ़ी इम्पैक्टफुल होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो च्विंगम वाला जो आपने शॉर्ट फिल्म बनाया था वो काफ़ी इम्पैक्टफुल था। तो थैंक यू सो मच चैनल के साथ जुड़ने के लिए। सीनियर हैं आप, डायरेक्शंस में मूवीज़ बनाते आए हैं, तो आपसे ये सवाल करेंगे इस वर्कशॉप से आपको कितनी उम्मीदें हैं सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मौका दिया बोलने के लिए, और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का, खासकर मैडम पद्मा अमोले का, कि उन्होंने इस तरह का एक वर्कशॉप यहां पे ऑर्गेनाइज़ किया। क्योंकि हम काम तो कर रहे हैं, लगभग मेरा खुद का मैं कहूँगा तो पर्सनली 20-22 साल हो गए इस फील्ड में, लेकिन हमने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया। और मुंबई से इतने अच्छे ट्रेनर, इतने अच्छे एक्सपर्ट यहाँ आके सिखा रहे हैं, तो ये मौका मैं मिस नहीं करना चाहता था। और जब इसका एक सिलेक्शन का प्रोसेस था, ऑनलाइन इसमें फॉर्म भरना था, तब मैंने फॉर्म भरा था और मुझे ये था कि अभी इतने बच्चे नए नए टैलेंटेड हैं यहाँ पे, मुझे ये लग रहा था कि शायद मैं सिलेक्ट नहीं होऊंगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा नाम इसमें सिलेक्ट हुआ, और यहाँ पे 5 दिन में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ। यहाँ पर अपने राइटिंग स्किल को डेवलप करना चाहता हूँ। कई साल से लिख रहा हूँ, और लेकिन हमारे लिखने में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, और वो यहाँ पे अब मुझे लगता है कि इस 5 दिन में हम काफ़ी कुछ इम्प्रूव करेंगे और इससे बहुत फ़ायदा होगा। जी, इस वर्कशॉप के बारे में और आने वाले वक्त में आपकी क्या उम्मीदें रहेगी इस वर्कशॉप से? सबसे पहले तो थैंक यू JK 24/7 का। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है लद्दाख के एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स के लिए कि यहाँ पे मुंबई से एक्सपर्ट फिल्म मेकर्स, डायरेक्टर्स आके यहाँ पे हमें स्क्रीन राइटिंग, डायरेक्शन एंड फिल्म मेकिंग सिखाने आए हुए हैं। तो इस क्लास को, इस सेशन को शायद मिस नहीं करना चाहिए, अगर जिन को इसमें इंटरेस्ट हो फिल्म मेकिंग में। तो उसमें से एक मैं भी हूँ, और मैं अभी क्या कहूँ, मतलब मैंने जब 2003 में मैंने एक डिप्लोमा कोर्स किया था जब मैं दिल्ली में था फिल्म मेकिंग में। फिर उसके बाद जो है
लद्दाख में जितने भी फिल्म्स शूट करने आते थे मुंबई से, जैसे गाना हो या कुछ सीन शूट करने आते थे, उसमें कोशिश करके एक प्रोडक्शन में जाके कुछ सीखने का जो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जो मिलता है वो बहुत ही अलग होता है। तो उसके चक्कर में काम कर चुका हूँ और काफ़ी इंटरनेशनल फिल्म और बॉलीवुड में काम कर चुका हूँ और अभी लाइन प्रोड्यूसर भी करता हूँ यहाँ पे। और एक मौका मिला जब मैंने एक फ़िल्म बनाई थी आइस हॉकी के ऊपर और उसका एक सिनॉप्सिस मैंने लिखा था, तो उसको वो काफ़ी अवार्ड मिले। तो उसी का उसके बाद जो है हमारे यहाँ पे THFFF हुआ, द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल, वहाँ से इंस्पायर होकर मुझे वहाँ पे भी बहुत सारे फिल्म मेकर एक्सपर्ट्स आए हुए थे, डायरेक्टर्स आए हुए थे। तो वहाँ से इंस्पायर होकर मैंने एक फ़िल्म शुरू किया, एक स्टोरी राइटिंग शुरू किया। तो एक स्टोरी अच्छा सा बन गया जो मैं बॉम्बे लेके गया, तो वहाँ पे एक प्रोडक्शन हाउस ने उसको अडॉप्ट करके उस पर एक फ़िल्म बना जो लास्ट विंटर पे है। वो मेरे ख्याल से ये पहला लद्दाख का हिंदी फिल्म होगा, एक फ़ीचर फिल्म है जो अभी 2 महीने में रिलीज़ होके आएगी। तो इसके अलावा मेरा फिल्म बैकग्राउंड क्या है कि ले में बहुत पुराना एक फिल्म थिएटर था जो मेरे घर के पास भी, ले में जो डिलाइट थिएटर है उसके पास ही मेरा घर है। तो मुझे स्कूल जाते समय भी उस फिल्म का स्टोरी मेरे रूम में सुनाई देता था। तो वहीं से थोड़ा फिल्म के लिए इंटरेस्ट और स्पोर्ट्स के लिए इंटरेस्ट रहा, क्योंकि मैं अभी एक नेशनल आइस स्केटिंग कोच भी हूँ। तो उसके साथ साथ एक और मौका मिला हॉलीवुड जाने के लिए। तो वहाँ हॉलीवुड में भी मैं 10 साल था, वहाँ पे भी मैंने फिल्म में इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। तो वहाँ पे कोशिश करी कि कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में कुछ मिले, काम मिले या कुछ एक्सपीरियंस मिले और सीखने को मिले। तो कुछ दोस्त बने, तो उनके साथ भी मैंने थोड़ा बहुत हॉलीवुड में काम करा। फिर उसके बाद वापस लद्दाख, तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे मिल के फिल्म बनानी चाहिए। जी मैम, जो स्क्रीन राइटर्स अभी वर्कशॉप हुआ है, फिल्म मेकर्स का काफ़ी डिमांड था कि उनके लिए कुछ नहीं हो पाता है, कहीं ना कहीं वो निगलेक्टेड फील करते थे। तो आपके इनिशिएटिव से आप आज बहुत खुश हैं, तो इससे क्या उम्मीदें लगाई जा सकती हैं? नेगलेक्टेड तो पता नहीं, आई डोंट थिंक कभी नेगलेक्टेड फील करते, क्योंकि लद्दाख में फिल्मिंग की बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट हाँ, लास्ट हिमालयन फिल्म फेस्टिवल में उनका एक रिक्वेस्ट था कि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अगर हम कुछ करें, एंड विल ट्राई टू गेट इन पीपल फ्रॉम बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे यहाँ का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री है। तो 2 चीज़ों का उनका फोकस था कि एक तो कैसे अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें, स्किल कौन सा वो होन कर सकें, सेकंड कैसे उनकी फिल्म्स को एक पैन इंडिया ऑडियंस मिले। तो इसीलिए जो पहला हम लोगों ने ये फेयर, वी कॉल इट स्क्रीन राइटर्स फेयर, क्योंकि स्क्रिप्ट भी किसी फिल्म का सबसे बेसिक बैकबोन स्क्रिप्ट रहता है। सो दिस इज़ अ स्क्रीन राइटर्स फेयर। उसमें एक 1 फुल डे सेशन इज़ ऑल्सो ऑन मार्केटिंग, कि अपने फिल्म को आप कैसे मार्केट करेंगे या अपने आइडियाज़ को। अगर आपने कोई फिल्म बनानी है जो आपको लगता है पैन इंडिया लेवल पे हो सकता है, लद्दाख की फिल्म, बट पैन इंडिया में इंटरेस्ट आ सकता है, हाउ टू पिच दैट फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पे कैसे करें, चाहे वो अमेजोन हो चाहे नेटफ्लिक्स हो। तो उस पर भी हमने फोकस किया। सो मेनली जो हमारा फेयर है दैट इज़ फोकसिंग ऑन 1 स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले राइटिंग, एंड सेकेंड इज़ अबाउट पिचिंग योर स्टोरी ऑन द प्लेटफॉर्म्स। इन फ्यूचर जैसे अभी तो ले में ये ऑर्गेनाइज किया, तो इनके लिए कोई एक्सपोजर टूर वगैरह, जैसे किसी बड़े फिल्म मेकर्स के साथ इंटरेक्शन? देखिए, इट्स अ गुड आइडिया। अभी जैसे हमारे यहाँ पे 2 फिल्म मेकर्स आए थे मेन, निखिल अडवाणी कल या परसों का सेशन है और आज एक शकुन बत्रा है। तो एंड वी हैव शांतनु सिंह ऑल्सो, जो एक ट्रेनिंग देते हैं, ही इज एसोसिएटेड विद फिल्म्स और अपना कुछ ट्रेनिंग भी करते हैं। सो अभी मैंने उनसे डिस्कस किया है, अगर उनको हमारी 20 फिल्म मेकर्स में से कोई ऐसे प्रॉमिसिंग लगे जिनको वो कहेंगे कि उनको फर्दर उनकी स्किल बिल्डिंग करके इम्प्रूव हो सकता है, ही कैन बी अ फ्यूचर स्क्रीन प्ले राइटर और अ फिल्म मेकर फॉर द नेशनल फिल्म इंडस्ट्री। तो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि अगर 3-4 वो ऐसे आइडेंटिफाई कर पाए, तो हम लोग विल प्लान टू सेंड देम फॉर फर्दर ट्रेनिंग बोलो या प्रोफेशनल कोर्स बोलो, उसके लिए हम बॉम्बे भेज सकते हैं। सेकेंडली, शकुन बत्रा ने ये भी बोला कि ही विल सी इफ़ ही फील्स ही कैन टेक समबडी एज एक्सपोजर के लिए। तो विल वर्क दैट आउट। अभी हम बात करते हैं, अगर उनका प्रपोजल हमें वायबल लगा फाइनेंशियली एंड अदरवाइज, और हमारे फिल्म मेकर्स अगर तैयार है, इतना टाइम दे सकते हैं, तो वी कैन लुक एट दैट।